So let's begin with the discussion of mock CAT T1 point section. Starting with a selection of question. Question number one, something from allegation and mixture. I guess you should have attempted it. Part one में डाल दीजिए. Question number two on the screen. It's something I guess from शायद number system. Leave it for now. Part two में डाल दीजिए. Question number three. I guess PNC, but skip it for now. Part two में डाल दीजिए. Question number fourth. I guess linear equations you could have attempted it for now. Part one में डाल दीजिए. Question number five, time and work you could have attempted it. Part one में डाल दीजिए. Question number six, functions could have skipped it for now. Part three में डाल दीजिए. Question number seven, time, speed, distance you should have attempted it. Part one में डाल दीजिए. Question number eight, geometry could have skipped it for now. Part three में डाल दीजिए. Question number nine, surds and indices you should have skipped it for now. You could have attempted it, I guess. Value put करके भी answer आ जाएगा. So attempt it for now. Part this one में डाल दीजिए. Question number 10 geometry part 3 में डाल दीजिए. Question number 11 something from I guess number system could have skipped it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 12 number system skip it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 13 surds and indices skip it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 14 ratios could have attempted it for now. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 15 geometry skip it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 16 again something seems to be like functions could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 17 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है. पीएनसी है ऑल्दो could have skipped it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 18 you could have skipped because it's mensuration. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 19 इस टाइप के क्वेश्चंस आई गेस अभिषेक सर ने कराए हैं, सो यू कुड हैव अटेम्प्टेड इट. पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 20 एवरेजेस 100% करना है. पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 21 समथिंग फ्रॉम आई गेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुड हैव स्किप्ड इट फॉर नाउ. पार्ट 3 में डाल दीजिए. एंड क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सिस्टम कुड हैव स्किप्ड इट फॉर नाउ. पार्ट 2 में डाल दीजिए. स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले कौन सा करना है? 1. 1. चलो, so let's start with it. Anyone having a doubt on question number 1? Yes. Yes, sir. no, sir. Anyone? किसी का डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, let's figure it out. एक बार देख लेते हैं. If A ounces each of salt and water are added to n ounces of an n% salt solution to obtain an n minus 20% salt, A is equal to. किसी का आंसर आया? Yes, sir, मेरा है. कैसे किया मैं? सर सिंपल इक्वेशन बना के मतलब मैंने लिखा था n नहीं, मेरा क्वेश्चन ऐसा है. हाँ. आप इसमें एलिगेशन रूल लगा सकते हैं. सिंपल इक्वेशन से तो देखो हो ही जाएगा, मैं वो नहीं करना चाहता. हाँ एलिगेशन रूल लग जाएगा क्या? सर. चलो लगा के देखें. भाई देखो, एनीवन इंटरेस्टेड कि मैं उसको एकदम नॉर्मल तरीके से कर दूं? थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करें, बिकॉज जिसका भी क्वेश्चन है उसने 3 मिनट्स 20 सेकंड्स लगाए हैं लगभग, और उसके बाद भी नहीं Yes, हुआ. तो इसको छोटा करने का तरीका बताता हूँ. आप इसको Yes. रीड कीजिए ढंग से. इफ ए आउंसेस ईच ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, मतलब आपने सॉल्ट कितना लिया A. और A. वाटर कितना लिया? A. ए. तो सोल्यूशन कितना हो गया? 2A. 2A. जिसमें से सॉल्ट कितना था? ए. मतलब कितना परसेंट था? 1:1 सर. 50%. यहां तक किसी को दिक्कत? No, sir. आपने 50 वाले को मिक्स किया था किसके साथ? n% वाले के साथ, और आपको n माइनस 20% मिला था. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज 20, दिस इज n माइनस 70. हाँ या ना? Yes, sir. ये Yes, किसका sir. रेशियो है? Salt. 2a और n का. Salt. ये हाँ 2a हाँ सोल्यूशन था, ये n solution का. सोल्यूशन था. क्लियर? Yes, sir. तो हाँ 20 अपॉन n माइनस 70 इक्वल टू 2a अपॉन n. 2 से ही काट दूं. a कितना आ गया? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए. सर आपने ये A No, कैसे sir. निकाला? नहीं समझ में आया लास्ट हाँ में. ये बता देते हैं. उससे पहले चारुल, एलिगेशन से इजी हो गया? Yes, sir. काफी इजी हो गया. ठीक है. अब बोलिए कौन बोल रहे हैं? सर ये लास्ट में सर जो आपने किया वो एक बार वापस रिपीट कर दीजिए. और सर स्टार्ट में ये जो 50% आप लाए हो ये कैसे किया?
अभी सब बता देते हैं। देखो आपने क्या किया, एक n% n सोल्यूशन था, n आउंसेस का n% सोल्यूशन था, हाँ है ना। हाँ इसमें आपने एक नया सोल्यूशन मिक्स किया जिसमें a आउंसेस सॉल्ट था, a आउंसेस वाटर था, मतलब आपका वो सोल्यूशन था 2a। हाँ बोलने का है ना। सर, नहीं समझ आया। अरे मैडम, आपने a ग्राम सॉल्ट लिया, a ग्राम वाटर लिया, तो सोल्यूशन कितना हो गया? आप जो नया सोल्यूशन ले रहे हैं वो 2A हो गया वो तो। हो गया। तो मैंने भी तो यही लिखा है मैम। तो सर ये n ounces of n% salt उसको solution। बाद में बात करेंगे ना। अच्छा तो ठीक ये है। समझ में आया, ये जो आपने नया वाला सोल्यूशन ऐड किया वो है, हाँ या ना। हाँ हाँ और हाँ इस हाँ। 2a में से सॉल्ट ए था, मतलब सॉल्ट कितना था? 50%। ठीक है, ये वाले की बात कर रहा हूँ। दूसरे वाले सोल्यूशन में टोटल वेट था n ग्राम और आपका हाँ सॉल्ट था n%, हाँ या ना। हाँ दोनों को मिक्स किया, n-20 बन गया, हाँ या ना। हाँ इससे मैंने रेशियो निकाला 20 n-70, हाँ या ना। हाँ और ये हाँ। किसका है? टोटल वेट का। यहाँ पे 2a था, यहाँ पे n था। हम्म। 2a n का रेशियो है। हाँ। इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू निकाल लिया, आंसर आ गया, हाँ या ना। ये वापस बताना, 2:n। 2:n, 2a:n। हाँ मैम ये हाँ किसका, ये रेशियो किसका आता है? सर। सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2 का। हाँ 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 ये 2a था, ये देखिए, हाँ और ये n था, क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ आ गया अभी समझ में? हाँ। तो बट ये 50% लिया अपन ने, खाली सॉल्ट लिया है, तो 2A क्यों लिया? ये लेना चाहिए ना। मैम आप जब एलिगेशन रूल लगाते हो तो पूरे वेसल पे लगाते हो, अच्छा ठीक लेकिन है ठीक है। कंसीडर तो केवल मिल्क या केवल वाटर ही करते हो। हाँ 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 ठीक है। चलेगा? यस सर। यस सर। shall I remove this? Yes, sir. Going ahead, next out, next question Fourth. please. Fourth. Sorry, फोर्थ। बताने का है किसी को? Yes, sir. बताना है? नो सर। हाँ सर, वरुण ने यस बोला है। हाँ। हाँ सर। एक सेकंड देना। चलो, Prasad writes in exams in which there are 70 questions. If there three marks are given for each correct answer and 1 mark is for incorrect answer, Prasad attempted only half of the total number of questions and got, मतलब उसने 35 अटेम्प्ट किए, 35 अटेम्प्ट ही नहीं किए, हाँ है ना। ठीक है, यस सर। 35 में से कुछ x करेक्ट हुए होंगे, 35 माइनस एक्स रॉन्ग हुए होंगे। 35 x करेक्ट का 3x मार्क्स मिल गया और 35 माइनस एक्स का 35 माइनस एक्स मार्क्स कट गया और टोटल मार्क्स आपका क्या बकवास है ये पूछा है तुमने? हो जाएगा। मैंने कुछ गलत किया है क्या, सही कर रहा हूँ मैं? इक्वेशन सही बनेगी क्या? 3x प्लस सर 4x, 3 नंबर मिल रहे हैं। x हाँ। इक्वल टू 80, x इक्वल टू 20। अरे क्या बकवास, ये शर्म आती नहीं आती तुमको ये क्वेश्चन पूछने में? तो सर ये अटक गया था उस टाइम पे, पता नहीं क्यों। अटक गया था तो कॉपी को एक बार ऊपर नीचे हिलाते, ठीक हो जाता। ठीक ये है वाली सर। टेक्निक नहीं आती क्या तुमको? आती है आती है। तो फिर लगाने का है ना, अब बाकियों को मत बताना। चलो आगे चले, ठीक है। हटा दो इसको। हाँ सर। नेक्स्ट प्लीज। फिफ्थ। बताने का है किसी को? यस सर। नहीं, मैंने कर तो लिया बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइक हुआ। मैडम अभी नहीं इजी सर। कोई दिक्कत नहीं। अजय वर्क्स एट 11/7 ऑफ हिज यूजुअल रेट एंड कंप्लीट। यार देखो, अजय की बात करते हैं। पहले उसका एफिशिएंसी 7 था, अब वो 11 पे ले गया, तो उसका टाइम रेशियो क्या हो गया होगा? 11 से 7 रह गया होगा। 11/7। हाँ। और अगर 7 के लिए हाँ 28 आ रहा है तो 11 के लिए 44, मतलब उसका एक्चुअल टाइम 44 है। यहां तक समझ में आया नहीं आया?
Yes, sir. कनन आ गया? Yes, sir. वो बोल रहा है had अजय वर्क एट 7/11 ऑफ हिज यूजुअल वर्क। अब अगर उसका एफिशिएंसी पहले 7 था तो अब 7 का 7/11 ही रह गया, दैट इज 49/11 रह गया। तो देन द टाइम टेकन बाय हिम टू, ये क्या बकवास है? ए भाई 77-49 का रेशियो है। हाँ हाँ, 77 के लिए अगर 44 आ रहा है तो 49 के लिए कितना आएगा? ये एफिशिएंसी रेशियो है, सॉरी 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 सॉरी, ये एफिशिएंसी रेशियो है। टाइम रेशियो 49-77 हो जाएगा। और 49 के लिए अगर आप 44 लिख रहे हो तो 77 के लिए कितना लिखोगे? 44/49 इंटू 77, हाँ या ना? 69 पॉइंट, हाँ 14। जो भी आएगा ये 44 इंटू 11/7, हाँ या हाँ ना? Yes, sir. ठीक है, पहले उसको 44 मिनट्स लग रहा था। then the time taken by him to complete the work would have been how much more than the usual time? अब इतना लग रहा है, -44। we'll take 44 कॉमन, 11/7 -1 होता है 4/7। आंसर गलत आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली निकाल के देखने का नहीं, 44 तो नहीं आएगा, कुछ तो गलती कर दी मैंने। सर ये 44 आंसर आ रहा था, मैंने टाइम स्पीड से कर दिया था इसको। मैं एक बार वापस से देख लेता हूँ, हो सकता है मिस्टेक हुई हो। देखिए अजय वर्क्स एट 11/7 ऑफ हिज यूजुअल वर्क कंप्लीटिंग 28 मिनट्स अर्लियर। अच्छा 28 मिनट्स अर्लियर बोला है भाई, सॉरी। पहले एफिशिएंसी 7 थी, अब 11 हो गई। तो टाइम पहले 11 था, अब 7 हो गया। तो 4x का डिफरेंस आ रहा है विच इज इक्वल टू 28। तो x 28, आ गया हाँ 7। मतलब 7, पहले उसको टाइम लगता था 77 मिनट्स, और अब उसको 49। अब वैसे निकाल लो, बट उससे कोई मतलब नहीं। पहले उसको, यानी उसका यूजुअल टाइम 77 है। अब इस केस में क्या हुआ, 11 से 7 रह गई, तो टाइम 7 से 11 हो जाएगा। यूजुअली उसको 77 लगता था, तो अब कितना लगेगा मेरे हिसाब से? 121। यस सर। सर ये 11 से 7 कैसे, जैसे अपन ने पहले किया था 7:7 इंटू। मैम एफिशिएंसी का रेशियो 11/7 है, टाइम का क्या होगा? नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ अपन पहले ऐसे करे थे ना, 7:7 इंटू 7/11। यार पता नहीं क्या बोल रहे हो, वापस से बोल रहा जो पहले किया था उसको कि छोड़ने का 7 है के ना। लिए, सॉरी अभी सॉरी। मैं बोल रहा हूँ 11 का रेशियो, 7 का रेशियो एफिशिएंसी, हम्म। तो टाइम 7-11 हो जाएगा। हाँ। 7 के लिए अगर 77 आ रहा है इंटू 11 करके, तो 11 के लिए 121 आएगा। हम्म। पहले एक, अभी 121 लग रहा है, यूजुअली 77 लगता है। कितने का डिफरेंस है? सर एक Yes, चीज ma'am. पूछनी थी। इसमें लिखा है अजय वर्क्स एट 11/7 ऑफ हिज यूजुअल रेट। तो सर हाँ। 11/7 लिखा है, तो मतलब अपन ने 7:11 क्यों किया है पहले एफिशिएंसी? ये पूछ रहे हो आप? हाँ हाँ मैम हाँ। पहले आपकी एफिशिएंसी 7 थी, अब 7 का 11/7 हो गई, तो कितनी हो गई? 11। यही तो मैंने लिखा है मैम। अच्छा क्लियर है? अच्छा, ओके सर। सर फिर हाँ। ये 11 फिर ये आप इस वाले में आप क्या? आप इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दीजिए। पहले एफिशिएंसी 1 लीजिए, अब 11/7 हो गई। हाँ फिर एलसीएम लीजिए, 7:11 आ गया। हाँ फिर इस स्टेप पे पहुंच जाइए, चलेगा? हाँ चलाइए मैडम ऐसे, चले आगे। हाँ। Shall I remove this? यस। नेक्स्ट प्लीज। 7। बताने का किसी को? नो सर। एनीवन? नो सर। नहीं। नेक्स्ट प्लीज। 9। बताने का किसी को? हाँ यस सर। सर। तो एक्स का वैल्यू पुट कर देने का इसको? नहीं सर इसमें मेरा आंसर 10 आ रहा था। मैडम, आपकी गलती है। मेरा भी सर। अभी ला देते हैं। पहली बात तो एक्स की वैल्यू पुट करके बता देता हूँ कैसे होगा। 4, एक्स को 9 पुट किया, 9 3 जा 27 और 1 28, 4 की पावर हाँ 28, इधर 16। सर फोर बट ये तो स्क्वायर। पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है सर ना। वो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स है। हाँ ठीक है, तो एक बार 9 को तो पुट करने दो।
अगर 9 से बड़ी कोई वैल्यू आ रही होगी तो नहीं होगा। सही, 4 स्क्वायर नहीं लिख देंगे इसको? अरे कर रहा हूँ मैं, एक बार जुगाड़ बता रहा हूँ, पूरा सोल्यूशन हम्म। दूंगा। 9 पुट किया, 9 टू जा 18 माइनस 4 18 14, ये दोनों इक्वल है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ है ना? यस और अगर है हाँ सर। तो एक सोल्यूशन आ गया 9। यस सर। अब दूसरा सोल्यूशन किसी को लगता है कि 1 आएगा तो 10 को सेटिस्फाई करना चाहिए सम ऑफ सोल्यूशन, 11 आएगा तो ये, नहीं तो ये तो क्लियर है। अब इसका प्रॉपर मेथड जो है वो सुन लीजिए। 4 पावर में था 3x माइनस 1 इक्वल टू 16 पावर में था 2x माइनस 4 इक्वल टू 4 पावर में 4x माइनस 4, हाँ या ना? यस यस सर। यस सर। पहला 3x माइनस 1 इक्वल टू 4x माइनस 4, हाँ या ना? हम्म। यस यस सर। सर सर 4x सर मॉड माइनस है ना 8 फिर। होगा 1 ना? माइनस सॉरी, 3 है। 4x माइनस 8, सो सॉरी। हाँ दूसरा सर पर माइनस ऑफ 3x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 4x माइनस 8, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन है ये सर तो। हाँ, सर 10 आ रहा है, फर्स्ट में 9 और सेकंड का 1, तो 10 आ रहा था। सेकंड का 1 आ रहा है हाँ सर हाँ 1 आएगा, बट वो अपना वो जो केस होता है ना इनइक्वालिटी, बराबर। उसमें नहीं देखिए होता। मैम सुनिए, मॉड ऑफ 3x माइनस 1 पॉजिटिव कब होगा? जब x ग्रेटर देन 1/3। ग्रेटर देन 1/3। और नेगेटिव कब होगा? लेस जब देन 1 x लेस लेस देन देन 1/3 हो। वन और बाई अगर थ्री आपका 1 आ रहा है तो वो इग्नोर किया जाएगा बिकॉज x लेस देन 1/3 था। ओके सर, समझ गए। तो ये समझ कंसिडर में नहीं नहीं आया। करेंगे इसको, क्योंकि इसको सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। यस। चले आगे। यस सर। यस सर। चले तो रिमूव एक दिस। क्वेश्चन, यस मैम। सर x इक्वल टू 1 तो ऊपर वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करा, तो वो भी एक रीजन हो सकता है क्या रिजेक्ट करने का? 100% क्यों नहीं कर रहा है ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई? क्योंकि वो इस कंडीशन में फॉल नहीं कर, मतलब इट कैन बी वन ऑफ द सेम वे। आप अगर सॉल्व करेंगे टेक्निकली मॉड को तो ये तरीका आएगा, आप हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो वो तरीका आएगा। अगर आपने ऐसा बोला कि x इक्वल टू 1 आ गया, अब इसको पुट करके हम्म देखो क्या यहाँ पे, तो वो हम्म बेवकूफी है। क्योंकि आप यहाँ से ही चेक कर लो ना यार, x1 तो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है, पुट करने की भी नीड क्या है। ओके सर। Shall I remove this? हाँ जी। नेक्स्ट प्लीज। 14। बताने का है किसी को? यस सर। Grandfather bought a certain number of chocolates for Diwali as Diwali gift for his three grands. He called them and asked them to share the chocolates in the ratio of their ages, which happened to be 3, 4, 5, without mentioning the total number of chocolates that he had bought. As the chocolates were kept in their grandfather's room, every child arrived at a different time of the day and took his respective share, thinking that he was the first to arrive. What fraction of chocolate remained unclaimed at the end of the day? अरे बढ़िया विषय। किसी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। नहीं हाँ। आंसर आएगा किसी का? यस नहीं सर। सर। चारुल का। मैम प्लीज एक्सप्लेन करेंगे कैसे किया? सर मैंने टोटल चॉकलेट्स 1728 ले ली क्योंकि रेशो 12 था, चलो ताकि मेरा कट जाए इजीली। बराबर, इजी कर दो मैम। हाँ सर ठीक है। तो मेरा भी आया था। यस मैम प्लीज। नहीं, आई एम सेइंग मेरा भी आया था। अरे एक बार सब तालियां बजाएंगे प्लीज जल्दी से। यार सर। मैडम कोई ठीक है सर। सोल्यूशन है तो बताओ ना, मेरा भी आया था, कब मैं क्या करूं? अरे जो मैं चारुल बता की रही थी, अप्रोच है उससे कुछ आपको। डिफरेंट था क्या? हाँ मतलब मैंने 1/2 एज्यूम नहीं करके 60 चॉकलेट्स एज्यूम की थी। 16 नहीं 60। 6060। हाँ जी। मैम ये दीक्षा है ना, ये चैट पे अ, ऐसे हंसने वाली इमोजी भेज दी आपके ऊपर, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो गई। सर रहने दो सर। यार देखो थोड़ा सा। सर देखो वो किसको ज्यादा बिलीव करती है। मैडम धोखा वही देता है किस पे बिलीव ज्यादा हो। देखो समझो बात को, यार थोड़ी सी चीजें अगर आंखें खोल के देखोगे ना
तो मेरे हिसाब से इजी हो जाएगी। मतलब या मेरे को ऑप्शन में दिख रहा है हमेशा डिनोमिनेटर में 24 24 24 ही है, मैं टोटल वैल्यू 24 नहीं ले सकता क्या कैलकुलेशन इजी करने के लिए? यस सर। हाँ सर। कहाँ 1728 60 इन सब पे जाने का, एक बार करके देखते क्या पता निकल जाता है। आई एम नॉट श्योर, और ट्रस्ट मी मैंने किया नहीं है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जहां पे मेरे को रेपिटेटिवली सेम डिनोमिनेटर दिख रहा है तो मैं एक बार ऐसा वैल्यू लेके देखूंगा। क्लियर है? करके यस देखें। सर। यस सर। हाँ सर। 24 चॉकलेट थी, सबसे पहले कौन आया? सर जिसका 3 to 12 वाला ईयर्स आया था। वाला। 3 वाला बंदा आया, हाँ हाँ। जी। 24 में से कितनी ले गया? 6। कितनी बची? सर 18। 18। 18 में से दूसरा बंदा आया, कितनी ले गया? सर 18 डिवाइड बाय 12 into 4। मैडम 12। सर मेरे को एक डाउट है, ये सबसे हाँ पहले 3 वाला बंदा क्यों आया? 6 ले गया सर वो भी। अभी बताया था ना, वो 6 ले गया, कितनी बची? 12। 12। तीसरा बंदा आया, कितनी ले जाएगा? 5। कितनी बची? 7। अनक्लेम्ड कितनी रह गई? 7 बाय 24। by 24। हाँ। हो और गया जादू? मेरे को नहीं समझ आया। यस अभी समझा सर। देते हाँ हैं। सर। सही है। रिलेटिवली इजी हुआ नहीं हुआ? यस सर। You could have saved your time just by looking at the options. थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठो, समझ रहे हो? मैंने देखो प्रैक्टिकली सोचो यार, मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन मेरा भी पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन मेरे को बस एक छोटी सी चीज स्ट्राइक की, मैंने आई वाज लुकिंग एट द ऑप्शंस के तीनों में 24 दे रखा है, चौथा 12 है, व्हिच इज अगेन अ फैक्टर ऑफ 24 ओनली। यस सर। आई कुड हैव अज्यूम्ड द वैल्यू टू बी 24, हो सकता है ना बैठे, कोई दिक्कत नहीं है ना बैठे तो हम्म। ट्राई तो करके देखेंगे। सर मैंने सोचा तीनों बार अपन को 12 से डिवाइड करना है, इसलिए मैंने 12 की अग्री, पार्ट मैं को कर आपका मान दिया। रहा हूँ, मैंने बोल रहा कि अगर मेरे डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते ना तो मैं 728 ही लेता, 1728 ही लेता मैं, वो गलत हाँ। नहीं है, वो सेकंड बेस्ट सोल्यूशन ओके कंसीडरिंग द ऑप्शन। ठीक है, समझ गए सर। यस अब सर। ज्योति का क्वेश्चन था कि सबसे पहले 3 क्यों आया। हाँ सर। मैडम आप किसको बुलाना चाहते हो? 4 को बुला लेते हैं। 4 को बुला लो, चलो। कितना चॉकलेट ले जाएगा मैडम? 4 8। by 12। हाँ 4 बाई 8। 12, 8 हो गया, 16 बची। आप किसको बुलाना चाहते हो? 5। कितनी ले जाएगा? 5 by 20। 12। आंसर सेम आएगा बट कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हाँ इसलिए 3 लिया था। दीक्षा क्या समझ में नहीं आया? सर अब समझ आ गया कि ऑर्डर या मैटर ही नहीं करेगा, मेरे को वही लग रहा था बस ऑर्डर। इसलिए आपकी बात सुनी नहीं थी जब आप पूछ रही थी, धीरे धीरे डाउट्स अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक है सर, समझ ठीक है मैम, चलो। एनीवन हैविंग अ डाउट कैन आस्क। नो सर। Shall I नो remove सर। this? यस हाँ सर। जी। Next please। 19। बताने का है किसी को? यस सर। यस नहीं सर। अब नहीं Just, चाहिए। यस just सर। नहीं, नो नहीं, सर। ये particularly for this question. Just tell me one thing, मैम ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में आया था? हाँ जी। सर ने ग्रुप पे भी डाला था। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, अब नहीं चाहिए। नहीं, टेस्ट आपने दिया था, हाँ। आपका गलत हुआ था या सही हुआ था? नहीं अटेम्प्ट नहीं किया था। अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन आंसर तो हाईलाइट हो गया होगा, हाँ। उसके बाद भी आप गलत आंसर दे रहे हो। यार सर टेस्ट में तो मतलब उसमें वहां थोड़ा होगा। सकते यार, थोड़े तो अच्छा दिमाग। ओ नहीं नहीं हमने देखा इसको तो। अब समझ में आया, सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी, मैं गलत करने से बात कर, सर रहने दो सर। सॉरी सर। यू शुड बी सॉरी फॉर दिस। किसी को समझना है कि यस सर, बता दो। हाँ सर। यस सर। सर ये अभिषेक सर ने करा दिया हाँ सर। वीकेंड में। सर हमें तो नहीं कराया एलकेब में, तो आप हमें कल बता करा दो। देंगे सर, कोई बात नहीं सर, आगे चलते हैं छोड़ दो, बस। हाँ छोड़ दीजिए। लेकिन यार सक्षम ने यस बोला है। सक्षम बताओ मुझे। ओह सर, सर अब फूल है तो इतनी बताइए। बायसनेस। मैडम वो पूरे सेशन में एक बार बोलता है, बीच में आप बोल रहे हो, सुना ही नहीं दे पाए। सक्षम हाँ बोल रहा है, बताने पड़े। ठीक है कोई सर। इधर से बताएगा, विद्यानगर से सरनी की अप्रोच बताइए, ताकि मेरी अगर कुछ डिफरेंट हो तो मैं बता दूं, नहीं तो वही चल रहा सर सर हमने ने AMGM की AMGM क्वालिटी वाली से बताई है। करवाया। और सर डिफरेंशिएशन वाली भी बताई है। है। नहीं नहीं सर, डिफरेंशिएशन वाली तो 2 डिफरेंशिएशन तो वालों नहीं ने बताई। बताई है। चलो, पता नहीं है मेरे को क्या बताइए, मैं मेरी तरीका बताता हूँ, अगर अलग लगे तो समझ लेना, सेम लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको आती है। देखो आपको क्या करने का है, 2 चीजें ध्यान रखने का है। मैं इसकी टेक्निकलिटीज अभी नहीं समझा रहा हूँ, व्हाट आई मीन टू से इज
I'm not giving you a reason why I'm performing the operation to be like this only. I'm just telling you the approach. Technicalities उस दिन समझाऊंगा जिस दिन inequalities पढ़ाऊंगा. चलेगा? हाँ Okay, जी sir. सर। Yes, sir. A, 2B, 3C, 4D. इसका कुछ सम दे रखा है. आपसे बोला गया है A, B स्क्वायर, CD स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है. यही बोला गया है. चलो आगे चलते हैं. एक छोटा सा काम आप कर दो. इसको लिख लो A, B, B, C, D, D. हाँ है ना? ये प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है. Yes, sir. ये मैक्सिमम कब होगा? जब सारी ये छह की छह वैल्यूज इक्वल हो जाए. Yes, sir. इन छह वैल्यूज को इक्वल करना है. इसका मतलब यहाँ पे जो B है ना, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है इक्वली. हाँ है ना? Yes, sir. A को कितने पार्ट में ब्रेक करना है? एक एक। पार्ट में एक. C को 3 बाय एक part में एक ही पार्ट छह में तो वैल्यू रखेंगे. लगेगी। और D को 2D दो part दो में। पार्ट में. अच्छा हाँ सर. सारी वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए. मतलब A 6 होना चाहिए, B 6 होना चाहिए, B 6 होना चाहिए, 3C 6 होना चाहिए, 2D 6 होना चाहिए. हाँ यस सर। हाँ. Yes. सर समझ गए सर। A, B, B, C, D, D. सॉल्व कर लोगे प्लीज? Sir 3888 ही आएगा। कैलकुलेट किया है ना मैम आपने? Yes sir, मैंने क्लास में करा था सर आ रहा calculate। है, सर आ रहा है, चेक कर लिया। अप्रोच समझ में आ गई? यस सर। Yes sir। करना क्या है? सर ये वापस 2 से into 3 into 3 वाली चीज बता दीजिए आपको. कौन सा 2 into 3 into 3? ये लास्ट में 6 into 6 into सुन 6. लीजिए. पहली बात, प्रोडक्ट पे चाहिए. प्रोडक्ट क्या चाहिए? प्रोडक्ट की पावर से मुझे समझ में आता है कि बी को कितने पार्ट में ब्रेक करना है, ए को कितने में करना है, सी को कितने में करना है और डी को कितने में करना है. बराबर? हाँ उतने पार्ट्स में इधर से ब्रेक कर दीजिए. हाँ. और इसके बाद हर वैल्यू को इक्वल रख दीजिए. मतलब 36 है तो 6 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए. सबको 6 6 6 हाँ. 6 6 देते हैं. अगर ए 6 है, बी 6 है, 3C 6 है तो सी कितना होगा मैम? 3 अब 2 बोलने 2 का 2 2 3C 6 sorry है, सी 2 2D 6 है, डी कितना होगा? 3 3 समझ में आ गया सब आ कुछ? गया. हाँ. अभी किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज. नो सर नहीं है। चलें आगे. हाँ सर। Shall I remove Yes this? sir। Yes sir. Next. 20. बताने का है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ सर। Next. थर्ड. फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया सर. बताने का है किसी को? यस No, सर। No sir। सो यस सर एक बार बता दो। सर दीक्षा कैसे करेंगे? एनी आइडिया मैम? सर सॉरी सर, ये हो गया, सॉरी सॉरी, ये मैं ना कंफ्यूज हो गई उस लास्ट वाले क्वेश्चन मैडम एक बार कान पकड़ के सॉरी बोल दोगे? सर आपको दिखेगा ही नहीं। फोटो भेज दो. सर मैं कल आपके सामने बोल दूंगी। चारों याद दिलाना एक बार क्लास में आपकी बैच की. Okay sir। हाँ भाई आगम डाउट है? हाँ सर। देख लेते हैं. 1 लाख लेस देन 1 लाख. 1 लाख में कितने डिजिट होते हैं आगम? सर 6 क्या बात कर रहे 0 हो? और एस। सही में? हाँ सर। बढ़िया बढ़िया. यानी आपको सर 1 लाख से छोटा नंबर बनाना है. मतलब 5 डिजिट नंबर बनाना है. हाँ 4 भी बना सकता हूँ. हाँ 3 2 1 सब कुछ. हाँ अब मैं सबको अलग अलग बनाऊं. इससे बढ़िया एक काम करता हूं. यहाँ पे कितने ऑप्शन है रखने के? 2. 3 दो. 0 6 या 9. यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है? 3 नहीं सर। फिर 3 फिर 3 फिर 3 इसमें से एक केस हटा दूं जब सारे 0 आए थे. हाँ हाँ.
सेपरेटली 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट बनाने की नीड खत्म हो गई। ज्योति यू वर सेइंग यहाँ पे 2 ऑप्शन है बिकॉज यू कैन नॉट पुट 0, राइट? हाँ हाँ सपोज इफ आई एम पुटिंग इट टू बी 00069, इट्स अ 2 डिजिट नंबर। हाँ सर, हाँ देखो, समझ गई ये चीज। हाँ चलेगा? हाँ हाँ Shall we सर। go ahead? यस सर। Shall I remove धन्यवाद this? सर। हाँ अरे Yes. हाँ मालिक आपका ही बात का धन्यवाद। अरे, नेक्स्ट प्लीज। 13। बताने का है किसी को? No, हाँ sir. सॉरी, नहीं सर, देख लो फिर भी। नहीं बताना क्या? सर ये वाला हो गया था क्योंकि सर, क्या +2 ऐड करके निकालना है ना। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अरे ये तो आपको सर आता ही ये होगा, अपना मैंने यही तो सिखा के PYQ भेजा था आपको। हाँ आ गया ये। यस सर, फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ तक कोई दिक्कत वरुण? नहीं सर। यार क्वेश्चन में पूछा है x4 प्लस 1/x, x³ प्लस 1/x³, x² प्लस 1/x², x प्लस 1/x प्लस 1, ये 5 वैल्यूज ऐड करने के लिए बोला है। हाँ x प्लस 1/x तो आपको मिली गई। हाँ x² प्लस 1/x² आप निकाल सकते हो या मैं निकाल के बताऊं? निकाल देंगे। सॉरी, समझ गया, हो जाएगा। पूरा हो जाएगा या करके बताऊं? हो जाएगा। Shall I remove this? यस सर। Next please। 17। 17। बताना है किसी को? हाँ सर। नहीं। हाँ सर, एक बार बता दो। बता देता है मालिक, एक बार बता देता है। और किसी को? Yes, किसी का sir. हुआ क्या ये? सर आपने मेरे को बताया फिर हो गया। ठीक है, और किसी का? सर ये मेरा हो गया था पर मेरा टाइम ही नहीं था तो मैंने ये नहीं करा था शायद। कोई ना कोई, अभी समझ में आ गया ना? हाँ चलो बढ़िया। How many ways 6 balls of different colors we put in 3 identical boxes? Just 1 minute. हाँ हाँ, in how many ways 6 balls of different colors we put in 3 identical boxes? देखो, यहाँ पे पार्टीशन मेथड लग सकता है क्या? नो सर। क्यों? सर डिफरेंट कलर्स है तो हाँ सर, डिफरेंट कलर्स है। पार्टीशन मेथड कब लगता है? जब आप आइडेंटिकल में। आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में लगता है, यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है तो पार्टीशन मेथड नहीं लगेगा। बराबर? यस सर। तो फिर करेंगे कैसे वो देखो। आप एक 6 ग्रुपिंग बॉल, लगेगा। सॉरी, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग लग जाएगा बट ग्रुपिंग से इजीली डायरेक्टली हो जाएगा। 600 कर सकते हैं इनका ब्रेकअप। हाँ सर। यस। 510 कर सकते हैं। हाँ। हाँ। 420 कर सकते हैं। 42। हाँ। 411 कर सकते हैं। हम्म। 330 कर सकते हैं। यस सर। 321 कर सकते हैं। यस। 222। हाँ। यस सर। और कोई फिजिकल केस लग रहा है क्या? नहीं। ये 600 को कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ? 3। 3 फैक्टोरियल। 3 सॉरी। 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बराबर, समझ में आ गया सबको? हाँ सर। तो बाकी क्या सो रहे हैं क्या? यस सर। आ गया सर। एक तो ये मेरे को नहीं समझ कि तुम वो गलत चीजें कैसे समझ में आ गई। ये गलत है। एक मिनट अपना सर, ये आंखें बंद रख लो लेकिन दिमाग खुला रखा करो, मेरी क्लास में बैठ। 6 0। सर इंटू 3 करेंगे क्या? हाँ तो कुछ भी नहीं करेंगे मैडम। नहीं, रुको रुको सर एक बार। सर ये वो वाले की तरह नहीं होगा, किटकैट वाले की तरह 0 1 2 3 4 5 6?
सर बास्केट आइडेंटिकल इसलिए नहीं होगा क्या इनटू कुछ भी? एग्जैक्टली तीनों बास्केट सेम है। हाँ आपने 6 बॉल का एक ग्रुप बनाया, पहली में डालो, दूसरी में डालो, तीसरी में डालो, कोई फर्क पड़ रहा है? नो सर। तो नहीं फिर सर। क्यों होगा इंटू 3 या इंटू 3 फैक्टोरियल या इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल? कुछ भी नहीं होगा। हाँ समझ में आया? यस सर। हाँ सर अब आ गया। वापस से अटका दूंगे। 6 में से 6 बॉल सेलेक्ट करने का 66 वेज होता है, बराबर? यस सर। सर। 6 में से 5 को एक बास्केट में डालना है, एक को एक अलग बास्केट में डालना है। 5 कौन सी होंगी? 65। 65। 65। इंटू 1C1 करूं? यस सर। इसके कितने तरीके होंगे? 6। उनकी तरीका होगा सर। 6 तरीके, मतलब 65 इंटू 1C1 तो 6 हाँ होगा ना। मतलब हाँ लेकिन इनका अरेंजमेंट कब शफलिंग नहीं बोल रहे करना है थे? अपने को, बिकॉज यस बॉक्सेस सर। आइडेंटिकल है। क्लियर है? हाँ सर चलो नहीं 1 मिनट 6 कैसे आया? मैडम, 65 आज की डेट में 6 होता है और 1C1 आज की डेट में 1 होता है, तो 6 इंटू 1 6 की टेबल के अकॉर्डिंगली 6 होता है। नहीं नहीं, आपने जो नंबर ऑफ केसेस बोले वो 1 ही रहेगा क्या? कौन सा बनी रहेगा? आपको क्या करना था, 6 में से 5 बॉल्स को एक साथ एक बास्केट में डालना था, छठी बॉल को दूसरी बास्केट में डालना। हाँ तो आपने 6 में से 5 बॉल सेलेक्ट कर ली, 65। हाँ। रिमेनिंग 1C1। ओके सर। और इनका अरेंजमेंट तो होगा ही नहीं, बिकॉज बॉक्सेस आइडेंटिकल है, तो शफलिंग तो करना ही नहीं है। हाँ जी ठीक है सर। आगे चलते हैं। इसका बताइए। टोटल 15 होगा। 6 4C2 सी 6C4 सॉरी इंटू 2 हाँ से 2C2 कितना हो गया? 15 आ रहा है क्या सक्षम? हाँ सर। हाँ सर। इसका 6C4 2C1 1C1। कितना आ रहा है? 30। 30। 30। अब इसमें 30। एक दिक्कत है। हम्म आपने क्या किया, बॉल नंबर 1 2 3 4 को सेलेक्ट कर लिया 64 से, ये फर्स्ट बॉक्स में गई, हाँ है ना? यस सर। बॉल 5 सेकंड बॉक्स में गई और बॉल 6 थर्ड बॉक्स में गई, चलेगा ये? हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। बॉल 6 सेकंड बॉक्स में गई, बॉल 5 थर्ड बॉक्स में गई, चलेगा ये? हाँ ये दोनों केसेस सेम है, डिफरेंट है? सेम है। क्योंकि सेम है। बॉक्सेस आइडेंटिकल है। हम्म यस सर। Same है। तो जब 4 1 1 है, आई डिवाइड इट बाय 2 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आई गेट द आंसर टू बी 15। 30 बोल रहे थे ना आप लोग? हम्म यार क्या बात कर रहे हो? 64 15 होता है क्या? हाँ ठीक है, चलेगा। चले आगे। यस सर। बोलिए जल्दी से, इसका क्या बनेगा? 6C3 इंटू 3C3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गया सबको? डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों हो रहा है? यस आंसर बताएगा कोई? यस सर। 10 ही होता है ना यार? ओ, बोलने का है ना। यस सर 10 होता है। यस सर नेक्स्ट 10 आएगा। यस सर 10 यस होगा। सर 10 होता है। नेक्स्ट 6C3 6C3 into 3C2 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 1C1। 3C2। डू आई नीड टू डिवाइड बाय एनीथिंग? नो नो सर। सर। गेट मी द वैल्यू नो सर। क्विकली। 60। सॉरी, सर 60 60। 60। 60। 60 इधर 6C2 6C2 62 4C2 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 2C2 डिवाइड बाय 3 2C2 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय डिवाइड बाय 3 by 3 फैक्टोरियल। factorial। फैक्टोरियल। वैल्यू बताएगा जल्दी से कोई? 62 हो गया 15, नहीं सॉरी 62 हो गया 15 इंटू 4C2 हो गया 6, 15 6 90 डिवाइड बाय 6, 15 आ गया क्या? यस सर। यस यस सर। सर 15 चलो ऐड करते हैं, 15 15 15, दैट इज 45। 45। 55। सर इसमें से 122 हो रहा है टोटल। 120 और एक बचा था 122, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। जस्ट अलाउ मी 1 सेकंड, एक बार मैं चार्जर कनेक्ट कर लेता हूं।
यहाँ तक क्लियर है? Shall we go ahead? Yes, sir. Shall I Yes, remove sir. this? Yes, sir. Sure. चलो, going ahead next please. Second. Question number 2. 2? क्या हाँ बात सर, है? थर्ड पार्ट. बताना है किसी को? यस सर. सर इसमें बहुत टाइम लग गया, मतलब क्योंकि एन निकालना था तो इसमें. क्या दिक्कत है मैडम? अपन कौन सी कैटेगरी वाले हैं? सर आपने तो मुझे 3 क्वेश्चन की कैटेगरी वाला समझ रखा है. अरे मेरे समझने से क्या होता है मैम? मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ. सर ये तो एपी बन रहा था ना, पर पता नहीं, मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया. मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लूँ. हाँ. There are exactly 5984 balls stocked in a pile such that the top layer of the pile has 1 ball, the layer below it has 3 balls, the layer below it has 6 balls, and the layer below it has 10 balls, and so on, so on, so on. Find the number of layers in the pile. चलो ठीक है. अब बोलिए, कौन बोल रहा है? दीक्षा. मैम क्या समझ में नहीं आया, बताइए. सर मतलब n+1 लगेगा समेशन पहली रो में वो कितने क्योंकि कितनी हमको इसमें बॉल्स n हैं? निकाल. पहली रो में कितनी बॉल्स हैं? 1, दूसरी में? 3, तीसरी में? 6, फोर्थ में? 10. जनरलाइज कर सकते हो क्या? फिफ्थ में हाँ सर 15 आ जाएगी. 1+2 है हो क्या ये? जाएगा 1+2. हाँ, 1+2+3. 1+2+2+3. nth रो में समेशन n. हाँ या ना? n into n+1/2. कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए. No sir. नो सर. Tn इक्वल टू n स्क्वेयर प्लस n और 1/2. हाँ या ना? हाँ. हाँ n. Sn इक्वल टू 1/2 बाहर ले लो. n स्क्वायर का समेशन होता है n+1 2n+1/6 और n का समेशन होता है n+1/2 और इसका वैल्यू आपको दे रखा है कितना? 5984. 5984. कोई दिक्कत? नो सर. नाउ द बिगेस्ट इशू, इसकी इतनी बड़ी कैलकुलेशन करूं कैसे? हाँ सर. करके देखते हैं मैडम. ये 1/2 को उधर ले जाऊं क्या? ठीक है. और इसमें से n+1/2 कॉमन ले लूं क्या? हाँ सर. 2n+1/3 + 1. हाँ या 3. ना? ठीक ये है. 5984 into 2 कितना होता है? 11968. पक्का? हाँ सर. इस 2 को भी उधर ले जाऊं क्या? 2n+1 Yes sir. + 3 हाँ. 2n+4 4. ले जाऊं 2 को हाँ. और इस 3 को भी एलसीएम लेके उधर ले जाऊं? हाँ. मल्टीप्लाई करके बताओ. 11968 into 2 into 3 71808. 808. इसमें से हाँ, 2 कॉमन ले रहा हूं Yes, sir. थर्ड ब्रैकेट में से हम्म. और इस 2 को डिवाइड में ले जा रहा हूं. कितना बचेगा? 35904. +3 नहीं होगा. सॉरी, नहीं. ओके सर. 3. 35904. पक्का? हाँ हाँ अरे पक्का. 35904 मैम क्या है? 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है. यहां तक समझ में हाँ आया? n+1 हाँ राइट. थोड़ा 3 सा कॉन्जिक्यूटिव सोचने का नंबर्स का तरीका मैं प्रोडक्ट आपको है. बता देता हूँ. थोड़ा सा सोचने का तरीका देख लो एक बार. you'll get a clarity about it. आपको 30 का क्यूब याद है क्या? 27,000. 27. 27,000. और 40 का हाँ. क्यूब? 64,000. मतलब ये 64,000. 30 और 40 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए. पहली बात ये समझ में आ गया. बरोबर. चलो ठीक है. यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 4. 4. कैन आई टेक द नंबर टू बी 30 31 32? हाँ या ना? Yes, sir. नहीं. यस सर. कैसे ले सकते हैं? यूनिट डिजिट 0 आएगा भाई. 2. अच्छा, हाँ. ओके. 0 हाँ, आ नहीं, जाएगा नहीं, एंड नहीं. में. नहीं नहीं ले सर. सकता हूँ 0 ना? वाला नहीं ले सकते. 31 32 33 ले सकता हूँ क्या? नहीं. यूनिट नो डिजिट सर. क्या आएगा? 6. 6. 6. 32 33 34 ले सकता हूँ क्या? हाँ. ले हाँ. लो ना. आंसर हाँ, है. हो जाएगा. हाँ. इसके बाद आपके पास कैलकुलेटर है. कैलकुलेट करके देख लेना. मेरे हिसाब से बैठ रहा हो. बढ़िया है मैडम.
हाँ बैठ रहा है सर। मजा आया सर पर यार? यही चीज, हाँ हद सर तो गई, आप बिठा स्ट्राइक के में। भी यार, मतलब बिल्कुल ही विश्वास ना है कि आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लो मैडम मेरी कैलकुलेशन। सर आप ही ने बोला। वेयर लाइज द ट्रस्ट? सर ट्रस्ट है तभी तो आपके बोलने के बाद किया, नहीं तो उससे पहले करती। रहने दो मैडम, रहने दो, जस्टिफाई मत करो इन चीजों को, छोड़ने का दे यार। सर एक मिनट हटाना मत प्लीज, जादू। ओके सर। पढ़ा दूं? हाँ हाँ हटा दो। शेल बी गो अहेड। Yes, sir. नेक्स्ट प्लीज। 6. बताने का है किसी को? Yes, Yes. sir. No, सर sir. यार Yes, तुम sir. शर्म आती है नहीं? एक बार हाँ या ना तो बोलो, आती है या नहीं आती? आती तो है सर। आनी भी चाहिए। सर मैंने तो नो कह दिया। अच्छा, जिसने यस बोला है, यस किसने बोला है? सर बताना सर है आपके सर। फेवरेट सर स्टूडेंट है मैंने सर। बोला। सर आपके अगर फेवरेट। तुमने नहीं तो नहीं नहीं बोला यार। अरे अनुपम जी। अरे तुम ही तो favorite। हाँ चारुल, क्या बोल रहे हो आप? सर बता तू, नहीं नहीं सर मत बताओ, कल आपने ऐसा मैडम कल कराया था। आपको हाँ सर। एक्सप्लेनेशन दिया 15 मिनट का बैठ के इस हाँ क्वेश्चन सर, में। नहीं 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 बताना सर। सुन लो अब क्या है, आपको पूछ लिया, छोड़ो। नहीं नहीं सर, मेडिकल सर मैंने में हो तो सुनो जल्दी स्टार्टिंग जाएगा। से। में पूछा भी नहीं था। हो जाएगा सर। दीक्षा झूठ नहीं बोलती। सर फिर रहने ही दो ना सर, सब मना ही कर रहे हैं तो। हाँ सर, ये मत बताओ सर। हाँ सर। फिर सर आप एंड में गिन के बताओगे, मैंने देखो कितने सारे बता दिए। हम वही तो काम कर रहा हूँ, तो बताना है क्या किसी को जेन्युइनली? जोक सवाल नो किसी को सर। पूछना है तो No, फिर पूछो। sir. नो पक्का? सर। नो नो सर। सर। चलो नहीं बता रहा, अब आप लोग बताओ कहाँ पे आएगा आंसर, एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा? 2.8. 0.8 मिड वैल्यू। समझ में आ गया सबको? अरे हाँ बोलो ना। हाँ यस सर। सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। 8. बताना है किसी को? नो नो सर। सर। एक सेकंड रुको। चलो भाई, हाँ बोलिए, बताना है किसी को? सर सर हाँ एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल्स का क्या सम होता है टोटल? अभी बता दूं क्या? पार्ट ऑफ ज्योमेट्री है। सर सिर्फ सम वाला पार्ट बता दो पूछ लो, मेरे मैं को। बना थोड़ी कर, पूछो अभी बता दूं। हाँ। ओके सर। चलेगा मैडम? ठीक है। यस इसका सर। प्रूफ प्रूफ दे दूंगा जिस दिन ज्योमेट्री पढ़ाऊं। ओके सर। अभी चले आगे। यस सर। नेक्स्ट प्लीज। 10. बताने का है किसी को? नो सर. पक्का? चले आगे। हम्म. नेक्स्ट प्लीज। 11. बताने का है किसी को? नो सर। Yes. बताना है? हाँ अरे डरते क्यों इतना? तेज बोलो सर, सुनने दे बच्चे। अरे बच्चों डरते क्यों इतना? नहीं सर पूछ रहे हम तो। कोई डरता है क्या मुझसे? अबे जवाब दो। मालिक डर यस बना रहना सर. चाहिए ना, या नहीं बना रहना चाहिए, आप बताओ। चुप रहो तुम यार, बकवास करते हो। पागल है कि कुछ भी लिख रही है सर। कल मीडियम पे मेरी क्लास है, याद रखना।
चारुल वो एक बात याद दिलाने के लिए बोला ना, वो याद दिला देना। ओके सर। चलो, let's go for the question. Mohan is a carpenter who specializes in making chairs. The total amount that he charges for any assignment he undertakes comprises two components: his wages for the assignment and the cost of raw material. मतलब मेरे हिसाब से ये शायद फिक्स और वेरिएबल वाला है। देखते हैं बाकी आगे। एक सेकंड रुकना। The first component, हाँ वही है। The first component is fixed and equals 560 per assignment, and the second component is variable component, which equals 2n square, whereas the number of the chairs that we make in an assignment. If for a certain assignment the average amount charged per chair by Mohan is not more than 68, then the minimum and the maximum possible number of chairs in the assignment are. सर हाँ सर बोलो। ऑप्शंस पुट कर लिए, एक बार 13, एक बार 14, एक बार 20, तो ऐसे कर सकते हैं ना इक्वेशन बना के। हाँ कर सकते हैं, 100%, कोई दिक्कत नहीं। करें। देखो 560 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा असाइनमेंट का। n चेयर्स का 2n स्क्वायर और मिलेगा, डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ चेयर्स है, एंड दिस शुड नॉट बी मोर देन 68, मतलब लेस देन इक्वल टू 68 होना चाहिए। हाँ है ना? यस सर। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं। नहीं, चले आगे। हम्म 2n स्क्वायर माइनस 68n प्लस 560 लेस देन इक्वल टू 0। हाँ है ना? यस सर। n स्क्वायर माइनस 34n प्लस 560 लेस देन इक्वल टू 0। हाँ है ना? सर ये 280 होना चाहिए ना, हाँ 2 तो ऐसे कॉमन बोलो है। ना, मैं तो गलत लिखता हूँ ताकि तुम लोग चेक कर सको कि सुन भी रहे हो या नहीं सुन। ठीक है सर। ठीक ही है मैडम, नेक्स्ट बोलो। यहाँ तक स्प्लिटिंग बताओ जल्दी से। 280 में स्प्लिट करना है 34 को। सर 14 और 2, सॉरी 14 और 20। 14 और 14 20। एंड 20। n माइनस 14 n माइनस 20 पूरा करके बताओ क्या, फिर इतने से काम चल जाएगा। हो जाएगा सर। हो गया हो सर। जाएगा क्रिटिकल सर। पॉइंट है 14 एंड 20 लेस देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव। आंसर मिनिमम 14 मैक्सिमम 20। कोई दिक्कत? नहीं। चलें आगे। यस सर। Shall I remove this? यस सर। 12th। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ बोलिए, बताना है किसी को? सर यस मैम। यस सर। ये मैंने ऐसे करा था 31 -2 का होल फैक्टोरियल, हाँ फिर अपॉन में 31 फैक्टोरियल, तो 31 वाला तो 31 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। सही है। सर फिर वहां पे 2 बचा तो वो 2 भी कैंसिल होगा अंदर, ऐसा 2 यस फैक्टोरियल मैम, अपॉन 31। समझिए अच्छा समझिए। जो चारुल ओके। बोल रही है वो मैं समझा देता हूँ। वो ऐसा बोल रही है, उसको ऐसे लिख दो। मैडम सही लिख रहा हूँ ना? यस सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस कोई सर। डाउट है तो बोल दीजिए जल्दी से, नहीं तो आगे चलेंगे। आ गया सर समझ। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी का भी डाउट है? नो सर। पक्का? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या बकवास है मैडम? ऐसे होता है क्या? आप 7 सर फैक्टोरियल को यही तो मैं 8 बोल रही थी, माइनस इसलिए 1 तो मेरा फैक्टोरियल गलत लिख के आंसर था। 8 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दोगे क्या? नहीं सर, ये गलत है। तो सबको तो समझ में आ गया था मैम। सर नहीं, मेरा माइक ऑफ था उस वक्त शायद, जब मैं बोल रही थी बाद में। बाकी सब क्या समझ में आया था तुम लोगों को? सर आप ऐसे पूछ रहे थे माहौल बना के, इसलिए हाँ बोलना था। सर अभी नंबर सिस्टम पढ़ाया ही नहीं तुम्हें आता। समझ में नहीं? हाँ तो नंबर सिस्टम पढ़ाया नहीं, क्या करेगा इसमें? पीएनसी तो पढ़ा है। हाँ 31 29 फैक्टोरियल को 31 माइनस 2 लिख के 31 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या मैं? नहीं कर सकते सर। नहीं नहीं कर सकते सर। तो अब क्या बोल रहा हूँ? अब तो मैं ही बता रहा हूँ। सर मेरी पूरी बात तो सुनो। सुनाओ मैडम। सर टाइम में ऐसा एक करवाया था, वहां पे सर ऐसा सा एक मेथड था।
मैडम टाइम वाले करवा सकते। सर अब पता नहीं, वो मेरे को तब भी नहीं समझ आया, वो मैंने कल भी लगाया तब भी मेरा आंसर गलत हो गया। अब दो चीजें, एक तो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, यस सर। दूसरी हाँ बात, जब टाइम में समझ में नहीं आया तो उनसे पूछा क्यों नहीं? सर, वो लोग बताते ही नहीं थे सर, कुछ डाउन क्लास में गई थी एक दिन, फिर 5 मिनट बचे चलो थे, उन्होंने बोला सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। अभिषेक सर करवा देंगे ये टॉपिक। ओके सर। ठीक है, अभिषेक सर अभी यहीं पे बैठे थे, वो बोल के गए मैं कराऊंगा। ओके सर। ठीक है, बाकी इसका एज ऑफ नाउ टेम्परेरी जो जुगाड़ बता दूं, यस सर। यस सर। अभिषेक से पूरा कराएंगे, मैं केवल जुगाड़ बता रहा हूँ। p-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p का रिमाइंडर इज ऑलवेज 1 व्हेन p इज अ ये प्राइम नंबर। हमेशा। इट्स अ थियरम। ओके मैंने सर। क्लास में भी बताया था आपको, ध्यान हो तो, सीआरटी करके कुछ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम और ये और वो और आयलर थ्योरम और सब 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 हाँ कुछ। हाँ हाँ। दिस इज वन ऑफ द थ्योरम्स, है ना। मैं जनरली ओके मेरी सर। क्लास में कवर नहीं करता हूँ, लेकिन अभिषेक से सेपरेटली उसको कवर कर, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर। ठीक है, चले आगे। हाँ। यहाँ पे p कितना है? यस। 31। इज इट अ प्राइम नंबर? हाँ। दिस इज p-2। यस सर। रिमाइंडर कितना हाँ। आएगा? 1। 1। चले, ओके सर। हाँ। एक और इसमें ही बता दूं, हाँ। p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p, कोई बता सकता है इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 0। -1 नहीं, वंशिका कैसे हो आया ही मैं? नहीं सकता, सॉरी। 0। क्या? 0। अरे वंशिका का कैसे है? अच्छा। तो हाँ जी, 1 के वो बाद तो कुछ 2 ही नहीं आता है सर, सर। ऐसे सोचा आपको। सॉरी। हाँ मतलब -1 आपने वहां से रिड्यूस किया था तो उसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली बोल दिया। नहीं, आप ऐसे तो नहीं बोल रहे, देखो सर यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया था, नेक्स्ट नंबर तो 2 ही होएगा। सर नहीं 0। नहीं नहीं। अरे यार छोड़ने का है, मैं भी क्यों पूछ रहा हूँ तुम लोग से, छोड़ो। सर यार बता तो कितना सर आएगा इसका। बताओ तो ऐसे सही। नालायक बच्चे हो तुम, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? यस सर। हाँ किसी को जेन्युइनली समझ में आया तो बोलने का है। हाँ p P 29, माइनस। p 31 लो, दिस इज 29 फैक्टोरियल, हाँ। यस दिस इज सर। 30 फैक्टोरियल। यस सर। 30 फैक्टोरियल यस कैन बी सर। रिटन एज 29 फैक्टोरियल इंटू 30। हाँ हाँ। यस वही सर। तो लिखा है, इसका रिमाइंडर बताओ। 1। हाँ सर 1। 1। और इसका, अबे p को पुट कर दो ना, 31। -2। अच्छा। व्हाट इज 31 अपॉन 30 का रिमाइंडर? 1। 30 अपॉन 31 का रिमाइंडर, 30 अपॉन 31 का रिमाइंडर सर 30। 30। 30। तो आंसर आ गया ना। समझ में आया क्या? हाँ सर हाँ। आ गया। भाई नहीं आया तो बोल देने का है। नहीं आया किसी को प्लीज बोल दीजिए। सर सर पर आपने इस वाले फॉर्म में क्यों लेकर आया था इसको? ये समझ में आ गया क्या? ये सेकंड वाला पार्ट समझ नहीं आया। हाँ। मैम, कैन आई राइट p-1 फैक्टोरियल इक्वल टू p-2 फैक्टोरियल इंटू p-1? यस यस सर। और नो? नहीं आया तो मैं वैल्यू लेके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए बस। आ गया सर। आ गया सर। पक्का? हाँ जी। p-2 फैक्टोरियल अपॉन p का रिमाइंडर कितना होता है? 1। अभी निकाला था अपन ने ऊपर। और हाँ। p-1 अपॉन p का रिमाइंडर क्या होता है? P। p-1। 4 अपॉन 5 का रिमाइंडर क्या होगा? 4। 4। 7, सॉरी 8 अपॉन 9 का रिमाइंडर क्या होगा? 8। 8। 8।
16/17 का रिमाइंडर क्या होगा? 16 16 तो p -1 अपॉन p का रिमाइंडर क्या होगा? p minus p 1 -1 इसका रिमाइंडर 1 मल्टीप्लाइड बाय इसका रिमाइंडर p -1 कितना बन गया? p -1 ये आपका क्लियर है। चारुल, आप कुछ डाउट पूछ रहे थे, नहीं सर, आ गया था मेरे को। पक्का? और किसी का यस कोई सर, डाउट बचा है तो यस बोल सर। दीजिए प्लीज। सर अगर ये प्राइम नंबर नहीं होता जैसे फिर क्या होता? वो कैट 25 में आएगा ना, तुम्हारी किस्मत तुमको 25 का एग्जाम दिलवाएगी। अरे तो सर एक बार बता तो हाँ दो। सर, प्राइम नंबर नहीं होता तब क्या हाँ होता? फिर क्या होता सर? अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर एक तो यस मैंने। सर, वेरी गुड क्वेश्चन दैट इज। अरे थैंक यू मैम। फिर मैं कुछ बोलूंगा फिर चारुल बोलेगी फिर मेरी किस्मत के हिसाब से भी आ ही सकता है इस साल। सर, बराबर। सर मैं तो जिसको कुछ बोल जिसको जहां भगवान दिख रहे हैं ना वहां पे हाथ जोड़ के बोल दो, बोले चारुल वाला स्लॉट ना दे। चारुल का तो टफ आएगा ना। सही बात है सर, आपको मिलेगा सर वो स्लॉट, टेंशन मत लो। मेरा बिगड़ जान तो क्या जाएगा मेरा। हाँ मतलब वो है। सुनो मेरी बात, अगर ये प्राइम नंबर नहीं होता तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा होता, फिर प्राइम में ले आता। क्या एकदम ही बेवकूफ हो गए यार तुम लोग? 62 होता तो कैंसिल होके कुछ ना कुछ तो बैठ रहा होता। 31 तो ले आता, उसको 2 से कैंसिल करके फिर देख लेता बैठ के। सर कभी कभार ऐसे हो कि ऊपर प्राइम नंबर हो और नीचे कॉम्पोजिट। तो वही तो मैडम, ऊपर फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल प्राइम नंबर का फैक्टोरियल है, बट स्टिल इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। फैक्टोरियल कभी प्राइम हो ही नहीं सकता अच्छा है। ओके, ये फैक्टोरियल वाले होते पे ही होता है। तो अच्छा हाँ सर, ओके ओके ओके। यार एक बात बताने का है मेरे को, आ गया 29 सर। अपॉन 31 का रिमाइंडर 1 होगा क्या? नहीं सर वो, मैडम ये फैक्टोरियल है ना। नहीं सर नहीं। आ गया। हाँ सर, हाँ हाँ। अभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा, बाकी अभिषेक सर करवा देंगे, पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, कैन आई रिमूव दिस? ओके सर। हटा दूं? यस सर। यस सर। गोइंग अहेड, नेक्स्ट प्लीज। 15 बताने का है किसी को? no sir नो सर। नेक्स्ट। 16 बताने का है किसी को? yes sir बताना है? हाँ सर अबे पूछ लो, ऐसे डरते क्यों हो? एक तो अभिषेक सर के सामने ज्यादा डर जाते नहीं हैं, तो फिर अरे नहीं नहीं सर वो ऐसे मैं देख रही थी क्वेश्चन को हाँ यार, फालतू डांट पड़वाते हो फिर से। मैडम एक बात बताओ, आपको ये 2 चीजें दे रखी हैं या नहीं दे रखी? yes sir पक्का दे रखी है? हाँ चलो ठीक है, मैं इसमें x की जगह x+5 डाल देता हूँ, मेरी इच्छा हो रही है, चलेगा क्या आपको? हाँ क्या बन जाएगा? x plus 5 का होल स्क्वायर प्लस bx plus 5 प्लस c ब्रैकेट ओपन कर दूं? हम्म x स्क्वायर प्लस 10 10x plus 25 10ax प्लस 10ax plus 25a 25a प्लस bx bx plus प्लस 5b प्लस 5c c हम्म इक्वल टू 2x² प्लस 15x प्लस 29। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर चलो, x² का एक ही टर्म है और x² का एक ही टर्म है, डायरेक्टली इक्वेट करके a को 2 2 बोल दूं तो चलेगा आपको? हाँ सर x के 2 टर्म है, 10ax और bx। 10a प्लस b हाँ इक्वल टू 15, और a 2 था तो b कितना हो गया? 15 3 ओ सॉरी -5 चलेगा आपको? हाँ 25a दोबारा प्लस बताना कैसे होगा? x के, देखो सर 2 टर्म है यहाँ पे, तो ये बनेगा हाँ 10a प्लस b का x हाँ इक्वल टू 15x। 10a प्लस b इक्वल टू 15, समझ गया। a को टू पुट कर दिया। 25a प्लस 5b प्लस c इक्वल टू 29। 25a 50 हो गया, 50 minus 25 तो C4 25 तो c हो गया 4। हाँ है ना? हाँ सर। यस a सर प्लस b प्लस c बचा 2 प्लस 4 6 माइनस 5 1। ठीक है सर चले आगे, चले क्या? यस जी सर। सर चल सकते हैं आप। Shall we go ahead with the next यस one? Yes, next हाँ out सर, यस please. सर। सॉरी। यस सर। Next, 18 बताने का है किसी को? नो सर नो Next, सर। 21
बताने का है किसी को? नहीं सर। तो सर नेक्स्ट, 22। बताने का है किसी को? हाँ सर एक बार बताओ। देख लेते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर डिवाइड एग्जैक्टली 2 अमंग 84, 120 एंड 210? ओहो, सर ये नंबर सिस्टम है या वेन डायग्राम? आपको कैसे करने की इच्छा है मैडम, वैसे ही करा देंगे। सर जैसे जियो। अरे मैम, आप अपनी इच्छा बोलो, इजी तो अपन बना लेंगे। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नंबर सिस्टम अभी पढ़ा नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं। वेन डायग्राम भी छोड़ो, फॉर्मूले से करा दो सीधे। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। सर ये वेन डायग्राम से हो सकता है? यस मैडम, अपने को जादू आता है, अपन कर देंगे। आप तो बैठ के देखिए। ओके सर। ए यार, मजा नहीं है। अब बढ़िया। How many natural numbers divide exactly 2 out of 84, 120 and 210? The number which divide 84 are the number which divide 84 are इवन सर अब ये कितने होंगे सर मतलब? अबे they are factors of 84. यस सर। जो नंबर 84 को डिवाइड करेगा वो 84 का फैक्टर होगा। हाँ समझ में आया? आया सर। यस सर। ये सर इंडियन वालों ने फैक्टर्स पढ़ लिया है। 84 के फैक्टर काउंट करके बताओ जल्दी से। सर 12 फैक्टर्स होंगे ना? पक्का? मेरे को नहीं पता है मैम, आप काउंट करके बताओ, मैं 12 लिख लूं। हाँ सर हाँ सर 12 है। 12 है। लिख हाँ देता सर हूँ। 12 है। हाँ ठीक है ठीक है। 120 के फैक्टर्स काउंट करके बताओ जल्दी से। 16। 20। 16 या 20? सर 16 आ रहे हैं। 16 आएंगे सर। सर 16 आ रहा है। अरे वैसे भी वंशिका का आगे से ही हो। 210 के फैक्टर्स बताइए प्लीज। सर 16। पक्का? हाँ जी। मैडम आप तो हाँ जी बोलोगे, बाकियों से पूछ रहा हूँ। भाई 16 आ रहा है क्या? मेरे लिए तो पक्का ही है। यस सर 16 है। हाँ सर 16 आ रहे हैं। यार एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू कौन सी होगी? 120 और 84 का, बट 210 का नहीं। 120 और 84 का कॉमन फैक्टर। हाँ कॉमन फैक्टर। कितने कॉमन फैक्टर्स होंगे? सर 2, 3 एंड 6। नहीं नहीं क्या बात? सॉरी। सर 2 3 6 12। 4 भी हाँ 4 भी है। यार एक बात बताओ, तुम्हारी गिनती 1 से चालू क्यों नहीं होती है? सर ये पर कर क्यों रहे अपन ऐसे? मैडम वेन डायग्राम से करना था ना। तो फिर आपने ओके फॉर्मूला सर। से बोला था ना। सॉरी, आप बोले थे ना फॉर्मूले से करवा दूं। फॉर्मूले से भी करवा दूंगा। करो तो हाँ सही यार, तुम लोग ऐसे डर क्यों जाते हो? चलो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। 12 फैक्टर्स है 84 के, लिख रहा हूँ यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8। 8 नहीं है मैडम, 9 10 सॉरी। 12 14 14। 21 then 28 then it's 42 and 84। ठीक है, 120 के लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 8 9 नहीं है, 10 12 15 20 24 30 40 60 120। इसके लिखते हैं 210 के। 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 7
210 ना, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10, 11, 12, 13, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210। ठीक है, 105 सर, सॉरी, 105 हाँ तो 105 लिखा है ना मैडम। सर, 105 बोला ना आपने। हमारे जमाने में जेनजी 105 सर। ही बोल, मैडम आप लोगों को नहीं, हमारे जमाने में 105 ही चलता था। अच्छा सर। चलो, अब 84 और 120 के कॉमन फैक्टर्स देख लो। 1, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोल रहे हो। 1 2 3 4, हाँ। हाँ। यस 6, हाँ। हाँ। 8 नहीं है, 10, 12। 1 2 3 4 6 12, 6 हो गए, और 15 नहीं है, 20 बस नहीं है, 6 है। तीनों के कॉमन फैक्टर्स देख लो, सबसे पहले ये डेटा फिल कर दूंगा। 1 2 3 एंड ओनली 1 2 6। 3, 6 भी तो कॉमन है तीनों 6। में। हाँ। हाँ 1 2 3 6, 7 नहीं है, 10 नहीं है। यार मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, मैं कुछ सोच लेता हूँ। आप मुझे केवल 84 और 120 के कॉमन फैक्टर्स बता दो, आई विल फिगर इट आउट, होपफुली कुछ पैटर्न मिल जाएगा। जल्दी से 1 बता 2 दो, 3 4 6 12। 1 2 3 4 6 12। काउंट करके बताओ जल्दी से, एंड प्लीज डोंट मिस अपॉन द 6 हो वैल्यूज। गए सर। पक्का श्योर है 6 है? यस सर। हाँ। श्योर हाँ ना? सर। ठीक है, अब भी जस्ट अलाउ मी 1 सेकंड। 84 है ना, 84 होता है 8 नहीं, 4 into 21, और 120 होता है, 120 क्या होता है? 8 2 इंटू, क्यूब इंटू 2 3 की इंटू 5। पावर 3 into 5। सेफ हो गया, 2 3 12। अरे बस हो गया, सॉर्टेड है। इतना सब करना ही नहीं था, सो सॉरी। सर आपने HCF ले लिया क्या? अभी बता देता हूँ, यहां तक का समझ में आ गया कि सबको? हाँ। चलो, सबसे पहले ये मिडिल वैल्यू सेंटर, इट शुड बी अ फैक्टर ऑफ 84, 120 एंड 210। हम्म। कैन यू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ द थ्री नंबर्स? यस यस सर। सर। यस 6 सर। 6 प्लीज डू इट फास्ट। 6 6 नहीं 6 नहीं 12 होगा। 12 तो आ ही नहीं सकता मैडम। अच्छा 12 हाँ मतलब सॉरी इट्स अ सर मल्टीपल ऑफ 6 ही 4, है। 210 इज नेवर अ मल्टीपल ऑफ 4। हाँ सर वो 6 सर ही 2। है 6। यार HCF फाइंड करने का नहीं आता है क्या तुमको? 6 होगा ना, 3 भी तो बैठ रहा यस है मैम तीनों। सर। अच्छा हाँ हाँ सॉरी। 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं चारों? सर 1 2 3 4। 4 और समझ में 1 2 आया? 3 6 4। ये वाला जो वैल्यू है, ये 84 और 120 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कितना होगा? 6। 12। हाँ अच्छा 12 12। 7 जा, 12 10 जा। हाँ हाँ सर 12 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 6। 6। 6 में से 4 आ गए, 2 लिख दूं? हाँ यस सर। ये 84 और 2 बोलो, 210 84 और 210 का कॉमन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 42। 42 के कितने फैक्टर्स होते हैं? इट इज 2 इंटू 3 इंटू 6, 8 फैक्टर होते हैं। यस सर 8 8 फैक्टर्स। में हाँ से 4। हाँ। ये 210 और 120 का HCF है, कितने फैक्टर्स होंगे? कौन सा सर नंबर आएगा? इसके भी 8 ही होंगे सर। 8 कितना ही होंगे। नंबर क्या आ रहा है मैम? 30 सर मैं वैसे निकाल रही थी। सर 30 आ रहा है। नंबर इज 30। 30 के कितने फैक्टर होते हैं? 2 3 5 8, मतलब ये 4। कोई दिक्कत? नो सर। नो आगे सर। सॉल्व करने की वैसे नीड नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। 4 4 8 तो 10 तो 12, 4 4 8 तो 10 और 6 16, 4 4 8 4 12 और 4 16। आपसे पूछा है इट हैव एग्जैक्टली डिविजिबल एग्जैक्टली बाय 2। एग्जैक्टली 2। 1 10। 2 और 3 वैल्यूज लेनी। क्लियर है? यस सर सर। हाँ,
सर ये इनका डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही कर लेंगे ना, कॉमन लेके। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। पहली बात तो देखो, अपना अप्रोच थोड़ा सा लेंथी इसलिए चला गया बिकॉज अपन इसके फैक्टर्स फाइंड कर रहे थे। नो नीड टू फाइंड इट आउट। एचसीएफ ये वाला जो वेन डायग्राम यस बना है सर। ये तो मेरे हिसाब से लेस देन 2 मिनट्स में हो गया। ये अप्रोच सबको समझ में आ गया, पहली बात। हाँ हाँ गोइंग अहेड, चारुल आप क्या बोल रहे हैं? इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। सर, तीनों का इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम कर लो। फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। This is हाँ prime factorization of 84. This is prime factorization of 120 and 210 ना, तो this is prime factorization of मेरे हिसाब से जो भी है अपना 210। हाँ है ना? यस सर। अब हाँ बताइए अब क्या करूं? यस सर। इनका सर, अब एचसीएफ ले जैसे लूं? 84 और 120 है ना, हाँ तो उसमें अपन देख लेंगे 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, तो मतलब 2 + 1 × 1 × 1 + 1, मतलब वही आप बोल रहे HCF वाला हो है। 2 + 1 3 × 2 6। हाँ, 6 इनके आ गए हाँ कॉमन दोनों में। हाँ हाँ। सिमिलरली बाकी के भी निकाल लेंगे और फिर सिमिलरली सेकंड थर्ड के रुक जाइए, मैं निकाल ही देता हूँ। पहले के आप 6 बोल रहे हैं, सेकंड थर्ड के मैं निकाल रहा हूँ। मेरे हिसाब से 1 1 1 8 आ गए। यस सर, और फर्स्ट थर्ड के मैं निकाल रहा हूँ 1 1 1 उसके 8 भी आ गए। 8 आ जाएंगे। अब यस क्या सर। करूं? और अब तीनों के भी निकाल लो। तीनों का निकाल लेता हूँ। 1 1 दैट्स इट 4। पूरी आएगा सर। सर बस आ गया, माइनस करके निकाल लेंगे। मैडम मैंने भी यही किया है। हाँ सर, मतलब वो, मतलब HCF निकालने की भी जरूरत नहीं थी फिर उसके फैक्टर्स में, ऐसा कहना चाहिए। अरे मैंने उसको थोड़ा सा इजी वे में बोल दिया कि आप एचसीएफ निकाल सकते हो। अल्टीमेटली तरीका वही है, मतलब समझ गए ना आप? अच्छा हाँ सर, मैं भी HCF निकाल रही हूँ। यस सर। हाँ So what will be the best approach for this आ question? गया सर, समझ गई। द वन दैट यू लाइक। Sorry, आई sir. कैन जस्ट टेल यू वन थिंग, एक अप्रोच मेरा एक चारुल का, अभी यू डिसाइड। सर मेरे को तो वेन डायग्राम बेटर लगा, लगा दो मैडम, आपका क्योंकि क्वेश्चन ये है, आपका लास्ट में आंसर है, आपका माइनस पेपर है, आपका क्या है, करने सब वाला। कुछ आपका है, जो करने का करो। अरे कोई फर्क नहीं है मैडम, सेम ही चीज है। उसने बस एचसीएफ वर्ड यूज नहीं किया, बाकी सब कुछ सेम किया उसने। हाँ, नहीं नहीं, बट उसने वेन डायग्राम यूज नहीं किया ना सर, तो वेन डायग्राम वाला जो सबट्रैक्शन है वो कंफ्यूज अब कर बिना सकता है ना वेन उस डायग्राम केस को यूज किए फिर इतना या तो सोचने का कैपेबिलिटी हो, और नहीं है तो वेन डायग्राम बना लो। ठीक है सर। बना लेना है ना? हाँ। इज इट डन एवरीवन? यस सर। कंप्लीट है टेस्ट? यस सर। So finally with this we are done with the discussion of mock CAT T1 quant section.